Namostu Gurudev. O my preceptor, please you answer me. What is the meaning of modern science and religion? वीर भगवान की जय. I listened your question. Your question is modern science and religion. It means what is the meaning of religion and science. Now I will give you answer. There is a conflict between religion and science. Science aims at truth by conducting experiments. The motto of science is seeing is believing. But religion bases its conviction on faith. It avoids too much of reasoning. It gets its inspiration from scripture, some scriptures believed to have been thought by superhuman beings. It is therefore a dogma. It believes in the emotion and intuition, which are spiritual and not physical. But science has not too far entered into the domain of emotion and intuition. Man is not a piece of dead matter with some energy acting mechanically as a switch system. He is a thinking being gifted with the power of discretion between God and between good and bad, moral and immoral, here and hereafter. So he approaches religion for guidance. If you want your religion's meaning, you are follow the religion points. So religion is for yourself guidance. Science has its base as intellect, but not on intuition. Human learning cannot be restricted to physical science alone. Therefore, science and religion both also necessary in this physical science. In modern education is necessary for your life, is for sensual happiness. But religion says you want your soul happiness, you follow the religion. What is the meaning of religion? One fellow is asked, I give that, man, answer. I give to answer that man. Religion is the highest bliss. Non-injuring, self-restraint and penance are the paths leading to it. Which is the path? Non-injuring, self-restraint and penance are the this path. Who is going this? He is following this path. He can attaining highest bliss. It means religion means highest bliss. Religion is the highest bliss. We are following that this way, which is highest bliss. We can attain that highest bliss by this path. Which is the path? Non-injuring, self-restraint, and penance are the path leading to it. Therefore, man today he wants only sensual happiness. Therefore, he is doing business and worldly works. All is a officer, minister, barrister,
all the only money and sensual happiness. He want money, he want sensual happiness. But one of the intellect man, one of the religious people they want only soul happiness. Soul happiness he want. He know the soul, therefore he want soul happiness. What is the meaning of soul? Acharya says, the soul is perceptible to the mental eye, not to the physical eye, as in the case of the body. The soul is in the body, just like the gold in the ore, fragrance in the flower, butter in the milk, fire in the wood. Similarly, the soul is in the body. The gold, butter in the milk, he says, where is milk? What is the milk? Butter in the milk, I can see. Acharya says, if we convert the milk into curnet and we churn it and we get the butter, from the butter we get the ghee. Similarly, we are meditating our pure soul. We can also, by the penance, by the soul meditations, we can also see our pure soul. Pure soul is Paramatma. We are not Paramatma. We are now binding karmas. What is the difference? We are now binding karmas, therefore we are mundane soul. Who is God? Who is free from all karmas, he is God. It is a difference. So we are following this religion. We are also the man also, all men also. One day we attaining pure soul, Paramatma. That Paramatma blessing we can attain. Therefore, Acharya says, I will give you blessings for your soul success. You must be practice. Try again. If at first you don't get success, try again. It is Acharya's sermon. Acharya has given his sermon. So he who is only sensual happiness he is want, he is doing sin. 5 senses he is doing sin, therefore he is one of the goddess also one day became dog. By sense he attaining that modification, dog modification. Who is practicing religion points, he is one of the dog also, by religious thought activities he can attain goddess modification. It is difference. Person asked, where is God? Who is God? At that time, in the to the student book, Mahatma Gandhi says, God is. God is. He who is free from karmas, he is God. So God is. God is in this world. Who is Kevala Jnani? He is God. God is not. He is not felt for me. It is worse for us. We are always practicing by right faith and right knowledge and right conduct. These 3 attributes we are practicing in religion points. We can also one day we can also
attain that God experience. God is, He is not felt so much worth for us. The absence of feeling is a disease which we shall someday through of knowledge. It is Mahatma Gandhi said to students. Today, the peoples are very, very sorrowful. Why? They don't know what is the meaning of religion, what is the meaning of soul. Therefore, Acharya says, soul is not other place. You are soul. In your soul, that infinite blessings. That infinite blessings you want, you must be practiced. In this saint stage, you can practice. You are also, one day, your soul also experience that pure soul, happiness. Therefore, now you can do contentment is the happiness is the heaven. इस प्रकार बताया जो contentment is the happiness is the heaven. जहाँ संतुष्टि है वही सुख है, वो संतुष्टि सुख जहाँ है वही स्वर्ग है, समझे। इसके लिए बोला गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन डोली समान। इसके लिए बोला तो वो जितने भी संसार में जो धन संपत्ति वैभव है, ये परिग्रह, ये पोजिशन कहलाता, परिग्रह कहलाता है। ये परिग्रह का जब तक त्याग नहीं है, इसमें अगर संतोष करते हम गोधन गजधन वाजधन को राजा महाराजा पर्याय में भी ये संसार के संपत्ति संतति वैभव में सुख मानते हैं, समझे। पेट की चिंता और पेटी की चिंता में अगर ध्येय रहते हैं, आत्मा की चिंता नहीं हो सकता। आत्मा की चिंता करने वाला ये गोधन गजधन और जो है वाजधन आदि संसार की जितनी संपत्ति वैभव है, इसका त्याग करेगा, तभी जो उसको आत्मा का सुख मिलेगा। वो आत्मा का सुख आनंद है तो कहाँ मिलेगा? सम्यक दृष्टि को आत्मा में ही वो सुख जो है मानव में आ जाएगा। इसलिए संतुष्टि तृप्ति उसको मिलेगा जो आत्मा के साधना में लीन रहते हैं। आत्मा का विश्वास पहले होना, आत्मा का विश्वास को ही बोलते राइट फेथ, आत्मा का ज्ञान को ही बोलते राइट नॉलेज, आत्मा के अनुभव को बोलते हैं उसको आत्मा का अनुभव, समझे। आत्मा का अनुभूति उसको होगा जिसको राइट कंडक्ट राइट सम्य अर्थात सम्यक चारित्र के है के प्रभाव से उसको आत्मा का अनुभव भी प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार है, आप इंग्लिश और हिंदी हो किसी भाषा में हो, आत्मा को पहले पहचानो। ये ज्ञान आपको आचार्य ने जो शास्त्र रचना किया है, उस शास्त्र को हम चोपड़ी बोलते हैं। उस चोपड़ी की बात हमारे खोपड़ी में आना चाहिए, तभी हमारे आत्मा का सुधार माना जाता है। जब तक हम आत्म कल्याण के मार्ग में दृढ़ नहीं होगा, साधना हमारा सही नहीं होगा, तो हम त्यागी भी एक दिन गिर सकते हैं, दुर्गति में भी जा सकते हैं। इसलिए मिथ्या दृष्टि इंद्रिय भोगों की तरह अपने उपयोग लगाता है। सम्यक दृष्टि आप संसार के दशा में रहते हुए भी आत्म कल्याण की भावना करता, आत्मा कल्याण की साधना में रहता है। इसलिए उसको आत्मा का आनंद एक दिन प्राप्त होने में कोई कठिनाई नहीं है। इसे इम्पॉसिबल वर्ड तो डिक्शनरी में है, देखिए मनुष्य के समान सच्चे मानव के सामने वो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए आपका
साधना किसका है? इंद्रिय सुख का साधना है, आत्मा सुख की साधना है। दो प्रकार साधना है। इंद्रिय सुख की साधना तर आपका दक्ष है, आपको कभी भी आत्मा का अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए एक व्यवहार ने भी दो है, एक प्रापंचिक व्यवहार, एक पारमार्थिक व्यवहार। आप प्रापंचिक व्यवहार का त्याग करके जब पारमार्थिक व्यवहार में सच्चे जीव गुरु शास्त्र का अवलंबन लेकर के और सम्यक आचरण और संयम आचरण में आगे बढ़ेंगे, तभी आपको आत्मा का आनंद मालूम पड़ेगा। जो कुछ आनंद है आपके आत्मा में ही है। आपके आत्मा का आनंद आप अनुभव कर सकते हैं। ये जो शरीर है, जैसे कपड़ा पहने हो, कपड़ा जड़ है, वैसे शरीर भी जड़ है। लेकिन आप कपड़ा शरीर को पहनाते हो, समझे? आत्मा किया कर्म से शरीर रूपी उनको कपड़ा प्राप्त हुआ है। इस शरीर रूपी कपड़ा को त्याग करने के लिए आपको विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो गीता में भी बताया कि गीता में क्या बताया? न जायते मृत्यते या कदाचिन्नायं भूत्वा भानुभूया अजो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। समझे? तो कृष्ण ने जो है अर्जुन के इस प्रकार उपदेश दिया, न जायते मृत्यते कदाचिन्नायं। ये आत्मा न जन्मता है न मरता है, कदापि जन्मने वाला नहीं आत्मा। नया आत्मा पैदा होने वाला नहीं। और आत्मा का कभी मरण नहीं होने वाला। न जायते मृत्यते कदाचिन्नायं भूत्वा भवितव्यम। भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, तीनों काल में कभी भी आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, आत्मा का नाश नहीं होता है। कदाचित भूत्वा भवितव्यम अनुभूया अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर है। अजर है, अमर है, शाश्वत है। ऐसे जो आत्मा होकर के, भिखारी होकर के भीख मांगता क्यों, इंद्रिय सुख के पीछे क्यों दौड़ता है? समझे? तू अजर अमर शाश्वत मान करके अपने आत्मा का विश्वास करो। ये शरीर नष्ट होने पर भी तुम्हारा आत्मा नष्ट होने वाला नहीं, ऐसा ये गीता में बताया है। इसलिए आपको आत्मा का आनंद लेने के लिए ऐसे साधु बनना चाहिए। कैसे साधु? गीता में बताया, दुखेशु दिग्रवना सुखेशु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोध स्थित मुनिरुच्यते। ये भी गीता में बोला है कि दुखेशु दिग्रवना, जो दुख से हैं तो संसार के सुख को छोड़ते समय दुख मानते हो, वो दुख नहीं मानना। इंद्रिय सुखों की अभिलाषा नहीं करना। दुखेशु दिग्रवना सुखेशु विगत स्पृहा, और सुख की अभिलाषा इच्छा नहीं करना और संसार के दुख से नहीं डरना। ऐसा जो साधु है वही एक दिन वीत राग भय क्रोधा, वो राग को, भय को, क्रोध को जी सकता है और एक दिन आत्मा के अनुभव से परमात्मा सुख को एक दिन प्राप्त कर सकता है। उसको नाम मुनि कहते हैं। मुनि रुच्यते, उसको मुनि कहा है। जो मुनि संसार के दुख से डरता नहीं, इंद्रिय सुखों की इच्छा करता नहीं और विविध राग भय क्रोधा, राग क्रोध भय को जो है तो नष्ट करता है, तो वही जो है मुनि कहलाता है। ऐसे मुनि बनना चाहिए। ये नहीं है सामान्य मुनि की कौन होता है? समझे? ये संसार के सुख की इच्छा करता है। साधु बन करके भी उनको तो इंद्रिय सुख चाहिए, रसनेन्द्रिय सुख चाहिए, बढ़िया बढ़िया गम गम चम चम माल खाना चाहता है। वो माल खाने वाला एक दिन मार खाएगा ही। इसलिए तो साधु को, त्यागी को भी सोचना चाहिए। साधु श्रेष्ठ माना जाता है। श्रेष्ठ साधु कौन है? साधु का पद दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो फल चाकर मिले, गिरे तो चकना चूर। साधु होकर के स्वाद के तरफ दृष्टि रखता है, समझे? वो चकना चूर हो जाएगा। साधु पद ऐसा श्रेष्ठ है, ये इंद्रियों को वश करके आत्मा के अनुभव के लिए आत्मा का साधन में परिपक्व रहता है। उसको राजा महाराजा क्या, चक्रवर्ती क्या, बड़े बड़े इंद्र आदि देवतागण भी उसको नतमस्तक होते हैं, उनकी सेवा में आते हैं। उनको जो है
उनके जो है कोई प्रकार संकट आए तो उस संकट वे इंद्रादि जीव भी दूर करने के लिए आकर के सेवा में तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार से ये जैन धर्म की विशेषता है। जैन धर्म जो कहता है कि तुम जिन बनने का पुरुषार्थ करो, समझे, तो जैन बनना पड़ेगा, इंद्रियों को वश करना पड़ेगा। उसका नाम जो है वो जैन श्रावक है। वो श्रावक एक दिन वो साधु बन सकता। श्रावक का अर्थ क्या है? श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। तो ऐसे श्रद्धावान, क्रियावान, विवेकवान, क्रियावान है तो वो श्रावक ही एक दिन जो है श्रमण साधु बनता है। समाणो, जिसका मन के अंदर समाणो अर्थात उसके मन में क्या बोलते हैं कि मिट्टी, सोना, उनको जैन दोनों में एक सा भाव है। वो मिट्टी और सोने को, ये सोना है, ये मिट्टी है, ये उनके अंदर है। तो भेदभाव नहीं रहता। जैसे सोना, चांदी, हीरा माधुरी पढ़ना है तो ये जो है ये मिट्टी के समान है, धूल के समान है, तुच्छ समझते हैं सम्यक दृष्टि, क्योंकि उनको आत्मा गुण का अनुभव है, आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का शुद्धान है। इसलिए तो संसार में ये गोधन आदि जो है को मिट्टी समझता है, उसके लिए उसका भजन का फल आत्मा का सुख आनंद है। इसलिए आत्मा में संतुष्ट रहने वाला, कामिनी कंचन का त्याग करने वाला ही आत्मा का अनुभव कर सकता है। कबीर ने भी कहा है, एक कनक अरु कामिनी, ये दो जग को खाएं, देखत ही विष चढ़े, मरे नरक ले जाए। एक स्त्री और पैसा संसार में इसी के बीच में दौड़ता मिथ्या दृष्टि है। बोले वो साधु हो, श्रावक हो, पंडित हो, समझे। जो स्त्री और पैसे का त्याग करता वो परमहंस दिगंबर जैन साधु आत्मा का अनुभव करते हुए समाधि वर्ण को प्राप्त करता है। तो वो समझता है वो साधु जो है ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला मान करके अपना साधन में तत्पर रहता। लेकिन कबीर ने कहा ये तो कामिनी कांचन का सर्वथा त्याग करता उनके लिए, और जो कामिनी कांचन के साथ में रहते हुए भी धर्म ध्यान करता, वो अपने स्त्री के साथ में वो सावक धर्मात्मा स्वर्ग में भी जाता है। देखिए धर्म करते हुए पति पत्नी दोनों धर्मात्मा है, वो दोनों करके स्वर्ग में जा सकता है। दोनों एक साथ भोग भूमि में जाता है, कल्प वृक्ष सुख भोगता है दान के प्रभाव से। और जो कामिनी कांचन में लिप्त है ऐसे व्यक्ति स्त्री के साथ में नरक में भी जाता। नरक में जाते ही ना स्त्री का पर्याय है न पुरुष का पर्याय है, दोनों नपुंसक हो जाते। जितने भी नारकी है वहाँ नपुंसक होते हैं, समझे। इसलिए भाई यहाँ हम इस मानव पर्याय में जो पुरुषार्थ कर सकते, जो धर्म साधन कर सकते, जो सम्यकता के साथ संयम का पालन कर सकते, ये संयम का पालन जीव पर्याय में भी पालन नहीं कर सकते। अगर आपको अभी कोई बोले, डॉक्टर अगर बोल देगा भैया तुम नमक छोड़ो, घी छोड़ो, तेल छोड़ो, अनाज छोड़ो, बोले तो हाँ साहब आप जो बोलते हैं वैसे मैं सब कुछ छोड़ देंगे, मेरे को बचाओ। क्यों बोलते? तुम रोग से पीड़ित है, इसीलिए डॉक्टर जो बोले वो मानते हैं। यहाँ तो तुमको जन्म मरण रूपी रोग है, उससे बचने के लिए ज्ञानियों का, सच्चा साधु त्यागियों का बात मानना चाहिए। तभी जो है तुम जन्म मरण रूप से बचने के लिए उपाय बताने वाला जैन धर्म है। आत्म का आनंद लेना है, जैन धर्म आत्म कल्याण की बात करता, आत्मा शुद्धि की बात करता। इस तरफ तुम्हारा दृष्टि है, तुम्हारे आत्मा का कल्याण होने में कोई कठिनाई नहीं। इसके लिए आप ट्राई पुरुषार्थ करना चाहिए, ज्ञानी की संगति में रहना चाहिए, अज्ञानियों की संगति से बचना चाहिए, तभी तुम्हारा कल्याण है। इसे बोलता पर्याय, परिवार, परिग्रह, ये तीनों का मोह ही तुमको डुबाने वाला है। तुम अपने ये शरीर रूपी पर्याय का और परिवार का और परिग्रह का मोह ममता को छोड़ देंगे, तभी तुम्हारे परिणाम में निर्मलता आएगी, विशुद्धता बढ़ेगी, आत्मा का आनंद मिलेगा। इस पंचम काल में भी उपशम क्षेषम सम्यक दर्शन का सद्भाव है, इसलिए तुम मोक्ष मार्गी आज भी बन सकते। अंत में
तुम समाधि मरण करके उच्च कोटि के देव पर्याय को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये जैन धर्म का उपदेश है। अपने जीवन में आचरण करो। इतना बोल करके मैं विसर्जन करते हैं। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय।